केचप मॉम्स और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, आप सबको पैमेला छितवाल की प्यार भरी नमस्ते। कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, इतनी ज़्यादा कि जो अरेंजमेंट मैंने बाहर किया था, आउटडोर अरेंजमेंट किया था आपको बाहर ले जाने के लिए, वो सारा गड़बड़ हो गया। सो मुझे सब सामान अंदर लेके आना पड़ा। आप लोग कैसे हैं? मेरा ख्याल है आप सब लोग हेल्दी होंगे, घर में रह रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। इन्जॉय तो नहीं कर रहे, बोर हो रहे होंगे, बिकॉज सारा टाइम घर में रहना इज़ नॉट दैट ईजी। So let's make our life interesting with some creative things, creative ideas. Every day, let's make some interesting thing with nice creative ideas. So this time we have brought how to decorate our house, inside our house, with hanging pots, hanging plants, and how to bring greenery on the walls or some other places, not the usual pots and other things, but we will use our creative ideas and let's see how we make it. So today we are going to decorate our blank walls. You see walls, see, now you see this. I have put this small little pot here, so the whole blank wall has become little interesting. Show this also. This is also hanging pot. I have used a different style, little longer than this, and it makes wall interesting. So there are many trendy options to hang your plants or to decorate plants in some different ways. You can use your creativity and you can decorate your balcony and your garden or inside your house. So the first thumb rule is keep your hanging plants, not always hanging plants, your plants on the eye level or little lower than high level, because like you see this one. See this one also. Because if you keep your plants very high, then it creates difficulty for you to water them, and then every now and then if you are dismantling the arrangement, again you are not happy. So it's always better that when you are watering it, it's very easy for you to handle all your plants. So there are many ways to keep your plants. One is on the walls. You can keep them on the walls. Now sometimes you don't want to spoil your walls also, you don't want to put nails. So what do? There are other options also. There are hooks with the sticking tape. It is a very strong sticking tape which you once take it out and put it on the wall, it sticks to the wall and then you can hang. But for that you can't hang very heavy things. You can hang little lighter, like these types of small little things we can hang on those sticking tape wale hooks. And then there are magnet hooks also. Those hooks which have magnets at the back side. So on the curtain rods, on the curtain rods, if they are iron curtain rods, you can put those hooks on that and then you can hang your plant. You see, the aim is that whatever arrangements earlier in the earlier episodes we have seen that in the pots, big pots, small pots. Now this time we are going to put emphasis on the hanging things or small little trails like this, which you can put on the corner or wherever in the center, wherever you feel like. So first thing you have to, when you want to make something for your tabletop, so you have to see which side the light is coming. Now if the light is coming, if the light is very bright and sunny, then you have to select those plants which can thrive in that bright sunshine.
There are other plants which look nice and which they don't like very bright and sunny light. Then we can put them in the little darker or shady corner. Then you have to see space also, how much space you have. You may have liked one piece of like this basket, but if you don't have a suitable place for that, that will not look nice. So you have to see your own place, and then you have to then you have to create a pot or whatever hanging pot you want to make. Then you make, first you select, because if you are having ferns, those ferns are broad. So for broader things you can have a corner and then little bigger corner. If the corner is very narrow, then you can have this kind of small little thing just to add color on the wall. And then you have to check the weather also. If the weather is rainy weather, then all the plants will look nice, they will look green and happy. If there is very harsh weather, like 2 months ago we had very strong summers, so then you should avoid all these things, because if you have AC all the time, then it is fine. If you are normal environment, then these types of plants, they don't do good in humid and hot rooms. So there are different choices. Now this is that neon money plant, very common name, money plant. These days we say pothos and other things, but this is neon. This I have put in a basket. See, this is in the basket, and there is a chain also there. Now because of the rain yesterday, I had to bring all these things inside. So you can hang it in a corner or on a elbow like stand. You can put it there. You have to see that, but make sure that the soil of the basket is light in weight. If it is very heavy, then it will be very difficult for you to move from here and there. Okay. Now this is a cactus. This can go, if you are keeping all the time in the room, then this color will become very light, because this type of plant needs bright sunshine. So it's better you keep it near the window where the sunshine is for about 5-6 hours in a day. It is bright and sunny, then it will have this kind of color. If you make it, if you like to keep it, if you want to keep it inside, then you please, for a day or two you can do it, because it's a light thing, very light. So isko kabhi idhar tang diya, kabhi udhar tang diya, it's up to you. Then there are those. Now this also, if you are making a basket like this, you can have, I will show with this pointer. I have a pointer mic from my kitchen. See, there are three plants. One is the tall one. These are syngoniums, and this is tangled hearts. The name is tangled heart. When you put many strings, then they look very nice. This is that one. And this is called purple heart. This also looks very nice, purple heart. These are string of banana. When they are hanging like this, they look beautiful. So it is all your imagination, your creativity. Now best thing for smaller houses is this kokedama. This is very popular with the youngsters. You see, they don't have time for watering, for seeing, looking after. So these small little things you can hang in your bathroom also, because this plant is air purifier. So this looks nice. You can hang it near the curtain. When you open the curtain, it's hanging there. It looks very nice. Last time one gentleman was asking me how to put plant in the mug. So I showed him this option. This was for keeping it straight. This was the straight option. Now if he is still there, I will show him. You can put a small little plant in this and put a string there, and you can hang it. See, these are the mugs
Many years ago, my grandchildren, they had made this kind of special mugs for them. So see, this is looking so pretty. You can make use of your mug also. So these are there are asparagus ferns. There are ferns which you can use. There is this philodendron. This is a very popular plant with the hanging pots. This is so now I will tell you how to make a basket. Quick style I will tell you. This wire is enough. Not Now for this you need for the baskets, I am going to tell you about the baskets. For this you need a basket, this kind of basket. There are other types also, plastic baskets, there are the woven baskets. So these are why they are nice. One is lot of air goes into them. The plastic ones, I don't use many plastic things. So plastic things you can use them. I will tell you another idea. So this is a basket and you can buy the same. Now this is 10 inches basket, okay. For that there are these kinds of linings available. These are jute linings. They are available. You just buy it from the market. You just put it in this. These days life is very easy. You put it like this. And what is the soil mix? I told you last time also, when you want to make a light soil, so you want one portion of the normal garden soil, one is this coco peat, this is what is it called, this is perlite, this is vermiculite, and this is neem khali, neem powder. This is very essential, because if your plant gets fungus, so this is the one which saves the plant from fungus. Now what I have done, I have mixed all these things and I have made a mixture like this. Let me wear gloves because मैंने एक और भी काम करना है. So you make a, first you have to, first of all you have to make a, I can't wear it. First of all mix all these ingredients which is sufficient for your basket. Then water it. I will not give lot of water because of my tablecloth will get spoiled. Yes, you have to water it little bit. I am going to put this plant. I am just giving you a demonstration. Make a hole here. This is a Chinese fern. Now Chinese fern so we should not encourage, I think. We should encourage Indian ferns. We've had enough of Chinese problems. See, this is a quick way of, see, if the soil is less, you can add little more soil and like this, and then you water it and your basket is ready. If you want more interesting things, you can add small chota plants on the sides. If now when this fern grows, next time I will show you. This looks so pretty because it's so delicate and nice. This will be, see how nice it is. Ferns look very nice. You can hang it you can hang it in this kind of place, in the balconies. So I will now keep it under. Soil mix, you have to make it, you know the basic soil. So soil has to be light and porous because it's easy to handle.
Next is I will tell you how to make kokedama. Kokedama is very interesting. These I made with my grandchildren 2-3 days ago. I gave them this activity. You see, these days children are very bored with life, so every day we have to create an activity for them. Achha. For this you need 40% soil. Soil is मिट्टी, नॉर्मल, इसको हाथ नहीं लगाओ बेटा, गिर जाएगा. मिट्टी, दिस इज सॉइल. 30% is your coco peat, this is coco peat, and 20% is your compost and little bit of fungicide. Fungicide, so I like to add fungicide to everything. So this is the basic mix. It's very light and porous. See, very light and porous. So what you have to do, मैंने इसको आधा वेट किया हुआ है. मैं भूल गई आज हिंदी में बोलना, सॉरी माय व्यूअर्स, थोड़ा मैं हिंदी में बोलना भूल गई. मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं आप हिंदी में नहीं बोलते हो, कभी इंग्लिश में बोलते हो. तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश. तो आप अपने बारे में भी बताते रहिए जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ. ये देखिए, इसको दिखाइए प्लीज़. ये मेरा पाइनएप्पल का एक प्लांट मैंने लगा दिया था, एक दूसरा अभी थोड़े दिन पहले हमने काटा था, उसका ये है. देखो, सी द रूट्स. नाउ टुमारो आई विल प्लांट इट अगेन इन द पॉट. सो फॉर कोकोडामा, अब आज फिर मैसी हो गया मेरा काम. यू हैव टू मेक ए, Charu, can you give me that one? Okay, I will take it myself. This is the plant I am going to put in kokedama. So all these 3-4 things you have to make a laddu ball. Messy है ना? You're finding it messy, viewers. देखिए ये बॉल बन गया. If you have that clay type of sand, that is also very good. कई बार गमलों में आ जाती है ना. इसको आपने ऐसे किया, make a ball, then you make it half. इसको ऐसे half किया. Don't have help. इसको इसमें रख दिया. It has roots also. ठीक है, इसमें रखा. इसमें वाटर है तो इसको it will be very easy to form a ball. Again you have to form it. Now this is moss, green moss. ये moss है, इसको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा. ये moss लीजिए. moss जो होता है ये मॉइस्चर को रिटेन करता है. अभी थोड़ा ऐसे है, जब आप अपने आप बनाएंगे थोड़ा नीट, जैसे वो बना हुआ है वैसे ही नीट बन जाएगा. ये बहुत साफ सफाई से बनेगा. अभी मैं बता रही हूँ तो नहीं तो सारा टाइम इसी में ही लग जाएगा. फिर हम और सारे चीज़ें, आपके क्वेश्चन आंसर सब चीज़ें. अभी इसमें वाटर है ना, इसको ऐसे स्क्वीज़ इट आउट. हो गया, सारा स्क्वीज आउट कर दिया. जस्ट सी, बॉल बन गया. और इट्स बेटर इफ़ यू मेक इट फ्लैट फ्रॉम डाउन. यू कैन देन कीप इट ऑन द टेबल ऑल्सो. यू कैन हैंग इट वट एवर वे यू लाइक. उसके बाद क्या करते हैं, देयर माई ग्रीन धागा गुम गया, नीचे गिर गया. अच्छा, कोई भी वूल ले लो, धागा ले लो, इसको ऐसे रफली नीट करना है. अभी मेरा इतना नीट नहीं हो रहा है बिकॉज मैं जल्दी जल्दी करना. लोग बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं. आप भी बनाइए, फिर मेरे को दिखाइए, फोटोग्राफ भेजिए. मैंने कल ग्रीन धागे से किया था. वो वाले हैं जो कल परसों जब मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, वो ग्रीन धागे से बनाया था. सी,
दिख रहा है ना बेटा? वन फ्रॉम डाउन, वन फ्रॉम अप। और आजकल जो यंगस्टर्स है वो कहेंगे वी वांट स्टाइलिश, ऐसे ही दो दो धागे डालेंगे तो वो कहेंगे वो जी मॉडर्न है। तो आप मॉडर्न भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप डिज़ाइन। अच्छा, फिर उसके बाद इसको ऐसे ले जाना ऊपर, जितना आपको धागा चाहिए टांगने के लिए फॉर हैंगिंग। देखिए, इसको ऐसे ले आए, इसको ऐसे ले आए, इसको ऐसे ले आए, देन अगेन इसके ऊपर आपने लगाना है ऐसे, सो दैट वो आपका, इसमें आपके पास कोई वो मिरर्स होते हैं, छोटे छोटे मिरर्स होते हैं फॉर एम्ब्रॉयडरी में आप लगाते हैं, वो लगाओ। यूज़ योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी, कोई कुछ भी जैसे भी अच्छा लगे। दिस इज़ जस्ट, आजकल के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होता। यह सब अब मैंने आपके लिए ये कर रही थी, कुछ ज़िंदगी का नहीं पता होता ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सी इट इज़ लाइक दिस। ताली बजाओ। नाइस, चलो, थैंक यू। दिस सीन इज ओवर नाउ। नेक्स्ट सीन। बहुत मैसी हो गया। हर बार बोलती हूँ मैसी नहीं करूँगी, बट गार्डनिंग का काम ही ऐसा है, व्हाट टू डू, बहुत मैसी हो जाता है। I didn't like these gloves at all, useless. अच्छा, देर आर अदर, बस वो तो मैंने सब चीज़ें बता दी। वो आपने देखना है, इसको ऐसे बनाइए, ट्रेलिंग बनाइए, जो भी आपका मन में है, जैसा भी है। दिस इज़ माई फेवरेट पीस, प्लीज़ शो इट क्लोजली। इट्स सो नाइस, बहुत पुराना है ये, कितने दिन से बना हुआ है, सो नाइस। सी दिस वॉज जस्ट ए बैम्बू का, ऐसे ही घर में कोई पैकिंग में आया था, सो उसमें मैंने होल कर दिया। ये वाइन ग्लास है मेरे हस्बैंड डियर का, तो ये डाल के ऐसे इसमें नॉट्स डाल के डाल दिया, स्ट्रिंग कर दिया। ये सब अपनी क्रिएटिविटी, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करिए, जो मर्ज़ी। अच्छा, देयर इज़, अब जो प्लास्टिक का आपको मैं आपको बता रही थी, प्लास्टिक के लिए मेरे ख्याल में एक, ये तो मेरा कुकिंग के लिए है, ऐसा एक ले लीजिए पॉट, अच्छा सा खूबसूरत ले लीजिए कोई भी। देन यू यूज़ इट फॉर कीपिंग योर, एक कोई कॉर्नर बना लीजिए जिसमें आपने एक परमानेंट थिक रस्सी का आपने एक वो ऐसा बना लो, एक कॉर्नर आपका, उसमें एक वो थोड़ा सा ऐसे बोर्ड आ जाए जिसके ऊपर आप ये उसको रख सकते हो। सो एवरी 5 days 6 days समटाइम्स यू कैन यूज़ दिस। अब ये आपका मन है, आज आपका मूड है ये रखने का। दिस इज़ क्लॉन्चे, वेरीगेटेड क्लॉन्चे, यू कैन कीप दिस। लाइफ को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, अदरवाइज कोरोना में लाइफ इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग। जितना मर्जी थोड़ा सा ऐसे रखेंगे सो दैट द पॉट इज़ नॉट, और इसको वाटर करना भी इजी है, इसमें वाटर किया, इसमें आपने रख दिया। दिस इज माई क्रिएटिविटी। अनदर वन आई मेड ए, नाउ दिस इज ए परमानेंट हैंगर। ऐसा हैंगर मैं बोल रही हूँ, आप कॉर्नर में कहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा विद बिगर। इसमें ये भी आ सकता है बट इतना प्रोपोर्शनेट नहीं लगेगा। सो ये मैंने, मेरे पास ये एक ब्लू पॉट है, इसके लिए ये मैंने ब्लू एंड वाइट ये वाला बनाया है। आई नो यू विल लाइक इट। ये मेरा प्रेजेंट है, दिस इज द प्रेजेंट टू मी। जस्ट सी, नाइस। इसको ऐसे सीधा भी बैलेंस, ठीक से बैलेंस होना चाहिए इसको। सो ऐसे एक दो हैंगर्स आप बना लो, अमेज़ॉन पे मिलते हैं मैक्रेमे के, they are expensive. If you feel like buying those, youngsters can afford. They don't have time also, they can afford and they can buy. And if you have time, you want to make use of your time, so you can use your own things and spend time on that making. See, this is the hanger. This was a tile. I had painted this tile. What is this?
how do you water them? हाँ, okay, Sakshi, very good question. How do you water those kokodamas? Yes, I have kept it here. I forgot to tell you, this is a मिस्टिंग पम्प. ठीक है, इसको पानी भर के रखो आप. थैंक यू साक्षी फॉर रिमाइंडिंग मी. ये देखो, बस बहुत वॉल नहीं ख़राब करनी है, इसके पीछे कुछ करो ऐसे, बस. थोड़ा इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा वेट करने की. अभी ये वेट आज कर दिया है 6, 7, 8, 9, 10 डेज़, आई डोंट नो कितने दिन के बाद इसको ज़रूरत होगी. ये वाली चीज़ों में तो जब आप पानी डालते हैं ना, कीप ए स्मॉलर वन, ऐसे छोटा छोटा सा नोज़ल हो, उसमें ऐसे डालेंगे. लो जी, तोड़ दिया मैंने, गिरा दिया, कोई बात. चलो ये हो गया, ये मिस्टिंग का हो गया. ये भी मैंने बॉटल का ही बनाया हुआ है. कहाँ गया बॉटल का? एक और था, गिर गया, कोई बात नहीं, गिर गया, नो प्रॉब्लम. अच्छा, नाउ वी विल हैंडल द क्वेश्चंस. गुरसिमरन कौर का सबसे पहले, शी सेज आई वॉन्ट टू डेकोरेट विद हैंगिंग पॉटेड प्लांट्स. वॉट ऑल प्लांट्स कैन आई चूज फॉर दिस सीजन? हैंगिंग प्लांट्स विद फ्लावर्स. अब विद फ्लावर्स तो गुरसिमरन ये है, आजकल फ्लावर्स बहुत कम हैं, बिकॉज आजकल है अपना 9 to 5, जो 4 o'clock बस क्लोज हो जाते हैं. Then there is petunia, Mexican petunia, वो भी they bloom only in the morning और इवनिंग में चले जाते हैं. बट अभी आप ऐसे वाले ही रखिए, ग्रीनरी वाले, जितनी मैंने आपको दिखाई हैं बास्केट्स रख सकते हैं गेट के ऊपर, तो दे लुक वेरी नाइस. कोई आपके पास अगर कोई स्टैंड हो तो उसमें यू कैन हैंग दोज बास्केट्स. और बास्केट्स को ऐसे पूरा जैसे बैल्कनी में आपने करना है, आई डोंट नो, मुझे वो बहुत लाइन वाला नहीं अच्छा लगता है. सो मेनी बास्केट्स इन वन लाइन. हैव लिटिल इंटरेस्टिंग थिंग्स, थोड़ा एक कोई नीचे कोई ऊपर, एंड आपका जो उसका हाइट है नॉट अबव योर हाइट. ऐसे आपका ऐसे पानी देना बहुत मुश्किल है. कीप इट लाइक दिस, बट इट शुड नॉट टच योर हेड ऑल्सो. आपका हस्बैंड आएगा, आपके बच्चे आएंगे, कोई टॉल बेटा है आपका, वो आएगा, वो कहेगा क्या कर दिया सारा, अभी जैसे मेरा ये गिर गया. सो ऐसे मिसहैप्स होते रहेंगे. So you have to see that also. ठीक है. So आपके लिए फ्लावर्स अभी आफ्टर 2 months इतने फ्लावर्स होंगे कि आप बस, आपका दिल खुश हो जाएगा. देर आर सो मैनी. सो नेस्टर्शियम है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो थोड़े हैंगिंग टाइप होते हैं. यू कैन हैव दोज. यू कैन हैव एलेसियम, वो वाइट होते हैं, एंड थोड़े पिंक भी होते हैं, लिटिल लाइलैक भी होते हैं. 3 टाइप के कलर्स होते हैं. उसकी बास्केट. पैंजी, फ्लॉक्स, वर्बिनास, देन जेरेनियम से ऐसे नीचे भी हैंग करते हैं. सो देर आर सो मैनी वेराइटीज. आफ्टर 3 months आई विल मेक अनदर सेशन लाइक दिस. आई विल मेक दोज बास्केट्स एंड शो यू. ठीक है गुरसिमरन, एन्जॉय योर गार्डन विद ग्रीनरी दीज डेज. अभी ग्रीनरी है, आपको फ्लावर्स थोड़ा मिलने आजकल आपके लिए मुश्किल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज इस बार फिर मेरे से लोगों ने ड्राइंग करवाई है. ये किन्होंने पूछा था, ये हाउ टू ग्रो, गायत्री सुले ने पूछा था हाउ टू ग्रो लॉबस्टर क्लॉ इन नासिक. लॉबस्टर क्लॉ ये एक फूल का नाम है. आई विल शो यू द फ्लावर. मैंने थोड़ा ड्राइंग किया है. ये हम इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं. दिस इज नोन बर्ड ऑफ पैराडाइज ऑल्सो, एंड हेलिकोनिया भी इसको बोलते हैं. ठीक है. ये ऐसा होता है, इट हैज़ वेरी लॉन्ग लीव्स, लाइक जैसे वो केले के पत्ते होते हैं ना, उस टाइप के पत्ते होते हैं, वेरी लॉन्ग, 3-4 फुट के होते हैं. एंड दिस वन इज द फ्लावर. इट कम्स इन 2 colors. वन इज, दिस इज ये रेड, एंड इसके नीचे जहाँ पे ये मॉइस्ट है, आपका एनवायरनमेंट जो है थोड़ा मॉइस्ट वाले में ज़्यादा फ्लरिश करता है. फॉरेस्ट में ये फ्लरिश करता है. जहाँ पे डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, ब्राइटनेस, बट नॉट द डायरेक्ट, जैसे अपना नॉर्थ इंडिया का है, इतना गर्म वाला जो है, उस टाइम पे आपको यू हैव टू
keep that plant. If it is a potted plant, you have to keep it under a cluster of between the cluster of other plants, because इसको humidity भी चाहिए, और इसको उस टाइम पे when it is very very harsh, the sun is very harsh, उस टाइम पे you have to create ह्यूमिडिटी विद मल्चिंग. थोड़ा पत्ते, ड्राई पत्ते वो पॉट के इर्द गिर्द उसमें डालेंगे, या अगर ज़मीन में है तो उसको ज़मीन में उसके इर्द गिर्द आप पत्ते डालिए, या वुड का जो होता है, जो वुड के शेविंग्स होते हैं वो डाल दीजिए. वुड का जो होता है ना वो छिलका, जो अब जब हम उसको बनाते हैं तो वो गीला करके वो डाल सकते हैं टू क्रिएट ह्यूमिडिटी. ये ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छा ये हैप्पी रहता है ये वाला प्लांट. ठीक है, वेरी इजी टू ग्रो. कोई ऐसा ये नहीं है कि ये प्लांट आ गया तो हम बस ये देख, इसका नाम बहुत वो है कि बड़ा मुश्किल नाम है, हाउ टू ग्रो लॉबस्टर क्लॉ. ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ इसका नाम है ये. इट्स एन ईजी प्लांट, बहुत ईजी प्लांट है. मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाई है. ड्राइंग मे नॉट बी वेरी गुड, बट ये प्लांट ऐसा ही होता है. ये बहुत लंबा, इसकी पता है हाइट कितनी हो जाती है? 8 से 12 फीट तक ऊंचा हो जाता है. केले के पेड़ से भी ऊंचा हो जाता है. और ये बड़ा ऐसे रफ इसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल ऐसे कटे पत्ते हुए होते हैं ये, एंड बहुत अच्छा रहता है ये. अगर आप इसको पॉट पे लगाएंगे तो इसकी डिपेंड्स हाउ बिग द पॉट इज़. सो अगर यू हैव ए बिग पॉट, अबाउट 3 फीट वाला बड़ा वाला आपका पॉट है, तो उसमें इसकी प्लांट की हाइट अराउंड 8 फीट तक हो जाएगी. सो दिस प्लांट डजंट लाइक ये, इसको क्विक वाली सॉइल नहीं, ये फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए क्विक, जैसे वो आपके हैं ये जो केमिकल्स हैं. इनके लिए आप अपनी ऑर्गेनिक रखिए, पोटेशियम रिच सॉइल रखिए, या इसको आप गोबर की भी दे सकते हैं सॉइल, वो आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए. और क्योंकि इसको क्विक वाले केमिकल वाला नहीं चाहिए, इसको स्लो रिलीज़ होनी चाहिए. जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं स्लो होना चाहिए, एंड ये आपका बड़ा अच्छा रहेगा. एंड इसके लिए जो ये इसका फूल आता है ये 1 to 1.5 मंथ तक वो रहता है. ड्राई होके भी इट डजंट लूज इट्स कलर, वो इसके साथ ही रहता है. एंड लाइक एनी अदर प्लांट, इसको आप नीम का वो जो स्प्रे आप लोगों को बताया हुआ है, नीम एंड वो पानी में डाल के ऐसे इसमें मिक्स करेंगे आप, तो वो ठीक रहेगा वो आपका. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट लॉबस्टर क्लॉ. अब गायत्री ने एक और पूछा है, अंगूर की बेल को कितने साल के बाद बढ़ने देना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये जो अंगूर की बेल होती है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत रैपिड इसकी ग्रोथ होती है. सो पहले तो इफ़ यू आर ग्रोइंग इट इन ए पॉट, सो यू हैव टू सिलेक्ट ए पॉट. मिनिमम कितना फीट होना चाहिए उसकी? 15 फीट, तो 12 फीट से 15 फीट उसकी विड्थ होनी चाहिए, और 10-12 फीट, बिकॉज इसकी ऐसे डीप होना चाहिए जो भी पॉट आपका होना चाहिए. अगर आपने ज़मीन लगाई हुई है, ज़मीन में लगाया हो, तो बस फिर तो ठीक है, ज़मीन का ऐसी कोई बात नहीं है. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव इट इन द पॉट, तो वो 12 से 15 फीट का उसका होना चाहिए विड्थ, एंड अप्रॉक्सीमेट 16 to 18 फीट डेप्थ. सो मॉइस्ट होनी चाहिए इसकी सॉइल जो है, मॉइस्ट नॉट वेट, सो दैट यू हैव टू सी. और मॉइस्ट रखने के लिए थोड़ा कोकोपीट हम ऐड कर सकते हैं इसमें. पोरस होनी चाहिए, जैसे आपको पता पोरस के लिए क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं, पर मॉइस्ट करने के लिए थोड़ा सा कोकोपीट हम ऐड कर देंगे. और इसको वाटर कब करना है? जब ये ऊपर का आप देखो पत्ता, जो ऊपर के पत्ते हैं जब थोड़े से ड्राई होने लगे तभी आपने वाटर करना है. अदरवाइज़ इनको वाटर करने की, ऐसे रोज़ वाटर करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, आपने पूछा था ये कब के कितने साल के बाद बढ़ने देना चाहिए. अब कितने साल का बाद ऐसे है, जो ये ग्रेप्स ग्रो करते हैं वो बोलते हैं 3-4 ईयर्स तक तो इसको कुछ नहीं करना, बिकॉज इसका जो स्टेम होता है, जो इसका मेन जब वो होता है, इसका जब आप बड़ा वाला पॉट लेंगे तो उसमें जो स्टेम है, तो जो 2-3 स्टेम्स वाला आपका अगर प्लांट है तो उसके साइड स्टेम सब काट दो. जो सेंटर का स्टेम है, जैसे दीज आर द साइड स्टेम्स, वो सब काट दो. सेंटर वाले को इसको आपने रखना है.
तो सारे साइड के काटते जाओ और उसको हमने हेल्दी बनाना है, बिकॉज इसकी जो फ्लावर्स आते हैं, इसकी जो बेल है, वाइन जो है वो बहुत बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करती है। सो इसकी पिंचिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पिंचिंग फर्स्ट। अब आपने टाइम पूछा है कितने साल, ये बोलते हैं जब 3 फीट के करीब कम से कम हो जाए, अब साल मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, डिपेंड्स। 3 फीट का, जब तक 3 फीट तक आपने क्या करना है, बस ऐसे सीधा उसकी ट्रंक को आपने लुक आफ्टर करना है, जितना उसकी ट्रंक है उसको आपने लुक आफ्टर करना है। साइड वाली जितनी शूट्स निकल रही हैं और ऊपर जो बन रहे हैं उनमें थोड़ा 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 पिंचिंग करते जाओ, पिंचिंग करते जाओ, टू मेक दिस सेंटर वाली स्टेम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। जब वो, उसका बेसिक रूल ये है कि जब वो कोई 5 फीट के करीब जब हो जाता है तो तब आप उसको वहाँ से पूरा स्निप कर दीजिए, सो दैट साइड में उसकी जो वाइन्स हैं साइड में निकलने लग जाए। फिर साइड में निकले, फिर वही पिंचिंग, इसकी पिंचिंग बहुत होती है। फर्स्ट ईयर कुछ नहीं करना, सेकंड ईयर थोड़ी सी आपने फर्टिलाइज़र उसको दे दीजिए और पिंचिंग। वाई इतनी पिंचिंग? बिकॉज इसकी लीव्स बड़े वो होती हैं, इसकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत नाजुक होती हैं और इसका जो फ्रूट होता है बहुत हैवी होता है। सो टू इंश्योर दैट द वाइन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव द फ्रूट, शुरू में फ्रूट कोई उसकी वायर करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, आफ्टर 3 years मिनिमम, वो तो सो आप भी ऐसे फॉलो कीजिए। एंड आई थिंक आपका गायत्री आपका बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्रून एनुअली, फिर आपने करना है फर्स्ट ईयर में करना है, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आपने डालना है फर्टिलाइज़र, एंड फिर आप उसको होने दीजिए और फिर आई होप अच्छे फ्रूट्स आएंगे। अंगूर खाइए, एंजॉय करिए, वाइन बनाइए उसकी, अंगूरों की वाइन, अंगूरों का जूस। अंगूर इज़ ए हेल्दी प्लांट, हेल्दी फ्रूट। सो ये आपका हो गया गायत्री। आई होप यू विल एंजॉय दिस, यू हैव एंजॉयड माई वट एवर आई हैव टोल्ड यू। नाउ मिस्टर मनमोहन says, my custard apple tree is 3 years old but has not given any fruit. Should I wait or should इसको निकाल दूँ या इसको रखूँ? देखिए मिस्टर मोहन, मैं तो निकालने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि नेचर जो है ना, कुछ नहीं पता चलता नेचर का। आपको कोई प्लांट अच्छा नहीं लग रहा है इसको छोड़ दो। मेरे पास एक करौंदे का प्लांट है, मेरे ख्याल में 3-4 साल से। पहले मैं उसकी बॉन्साई बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो इसको पॉट में लगा देती हूँ, एक भी फूल उसका छोटा छोटा करौंदा नहीं आता। अभी 4-5 साल हो गया मेरे ख्याल में, अब फर्स्ट ईयर छोटे छोटे करौंदे आए हैं। सो प्लांट पड़ा हुआ है आपके ज़मीन में लगा हुआ है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उससे नहीं हो रहे हैं तो उसको आप अभी रखिए, ठीक है। नेचर का कुछ नहीं पता होता, आज कल सुबह आप उठें तो ये आपको कुछ खुश कर दे आपका प्लांट, ठीक है। बट ये जो कस्टर्ड एप्पल होता है, इसकी प्रूनिंग एवरी नाउ एंड देन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आप ये चेक कर लीजिए कि एक आपने प्रूनिंग करनी है उसकी। फिर आपने फंगिसाइड तो नहीं है, आपने उसके इर्द गिर्द जो है ना डिगिंग करिए, जहाँ आपने प्लांट लगाया हुआ है। अगर आपका पॉट में है तो उसके जो आपका ऐसे है ना प्लांट, तो उसके इर्द गिर्द सब थोड़ी डीप डिगिंग करके यू गिव फंगिसाइड उसमें डालिए। एंड जब आपका ब्लूम होने का जब टाइम है उसका, उससे पहले जब फूल आता है, फ्लावरिंग होती है, उससे पहले डिगिंग करके फंगिसाइड डालिए। और इसमें आप अपना, ये मैंने पढ़ के मैं बता रही हूँ, उन्होंने बोला 5-10-5 NPK। जब बस आपको लगता है कि अभी ये दिस इज़ द टाइम, ब्लूम होने का टाइम है, तो 5-10-5 NPK आप डाल दीजिए। आफ्टर दैट जब आप छोटा सा फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे यू हैव टू पुट 10-26-26। ये उसमें पड़ा है, तो आप देखिए अगर आपको होगा, मेरे ख्याल में 100% आपका ठीक होएगा। एंड वेट फॉर अनदर ईयर, डोंट लूज़ हार्ट। मिस्टर मनमोहन, आपका ज़रूर होएगा, बहुत अच्छा होएगा, ठीक है। इसको ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ये जो है आपका कस्टर्ड एप्पल। अच्छा, नाउ इज़, और किसका था? गायत्री का हो गया। तनु आपने
मुझे ये लास्ट टाइम भी पूछा था, मेरा मोगरा मेरी कंप्लेंट है। लास्ट टाइम भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, मैंने जवाब भी दिया था कि ये मेरा मोगरा प्लांट, अब टी टाइम है ना, तो मुझे लगता है आप चाय वाय बनाने लग गए होंगे, आपने देखा नहीं। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो नाम मेरे को याद आ गया तो आई टुक आउट दैट कार्ड, ठीक है। सो उसमें उन्होंने, आपने बोला है कि मुझे मोगरा प्लांट जो है ब्लूम नहीं कर रहे इस बार, सारा साल उसने ब्लूम नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी ब्लूम करेगा। उसका क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आपका क्रीपर है बहुत रूथलेस, उसकी वो कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। पॉट में है, खूब प्रूनिंग कर दीजिए, इसको प्रूनिंग बहुत अच्छी रहती है, इट सूट्स दिस प्लांट। खूब प्रूनिंग कीजिए, अगर क्रीपर है, खूब बेल है, कर दीजिए। फिर उसके इर्द गिर्द सारा खुदाई कीजिए, खूब सारी खुदाई करिए। फिर उसमें आप काऊ डंग डाल दीजिए, अगर काऊ डंग का अच्छा वाला मैन्योर है, और बोन मील इज़ वेरी गुड, वो डाल दीजिए। फिर जो मिट्टी आपने खोदी है वो उसके ऊपर ऐसे डाल के अच्छे से वाटर कर दीजिए और जस्ट लीव इट। वो आपकी जो इट्स ए वेरी गुड फंगिसाइड, तो जो फंगस अगर इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाता है। एंड गिव ए स्प्रे ऑफ अपना नीम का जो पानी है उसका, जो आपको बताया हुआ है, उसको भी स्प्रे कर दो। अच्छे से स्प्रे करके, जैसे हम अपने आप को शैम्पू करते हैं, ट्रिमिंग बाल करते हैं, मसाज करते हैं, इस बिकॉज दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ एसिटिक, इट्स क्वालिटी इज़ एसिटिक, तो वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट्स ब्लूम के लिए। एंड यू विल नोटिस इन आई थिंक 3-4 days 5 days वो छोटे छोटे उसका शूट्स निकलने लग जाएंगे। एंड वंस दे स्टार्ट एंड देन योर प्लांट विल गिव यू फ्रूट, ठीक है। और क्या है, आपने एक और पूछा है कौन से इंडोर प्लांट्स, ये तो अब मैंने इतनी बार बताया हुआ है सब लोगों को। इंडोर प्लांट्स बहुत हैं, अभी मैं कुछ नाम आपको बता देती हूँ। एग्लोनिमा, देन एरिका पाम, ये पीछे ही पड़ा हुआ है। बॉस्टन फर्न अभी यहाँ नहीं है मेरे पास। सिंगोनियम भी यहाँ कहीं है, वहाँ लगा हुआ वो सिंगोनियम है। देन क्रोटॉन्स हैं, देन डाइफिनबेचिया है, पीस लिली है। सो ऑल दीज थिंग्स, तनु इस बार आपने सुना होएगा, आई होप। नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन नहीं मैं टैकल करूँगी, ठीक है। सो ये हो गए, सबके क्वेश्चंस हो गए। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। आपने और क्या रह गया, व्हेन वी वांट टू पुट फर्टिलाइजर, किसमें, इसमें नहीं है, इसमें इन दिस देयर इज नो नीड टू पुट एनी फर्टिलाइजर। शुरू में हमने डाला था, मैंने बोला ना, कोकोपीट, इसमें हमने कोकोपीट डाला है, गार्डन सॉइल डाला है, और इसमें हमने कंपोस्ट डाला है, बस दैट इज इनफ। अगर आपको लग रहा है, अब ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, अगर आपको लग रहा है बहुत सैड हो गया, कुछ ऐसे सैड होता नहीं है, ये तो दीज आर वेरी हार्डी प्लांट्स, सैड नहीं होंगे। इन केस यू आर वेरी कीन ऑन गिविंग फर्टिलाइजर, तो आप क्या करें, थोड़ा सा ये क्या लेंगे आप, क्या चीज़ डालेंगे अभी, उसको डाइल्यूट करके, कोई भी फर्टिलाइज़र वेरी माइल्ड, उसको इसमें यही वाले पंप में डाल के उसको स्प्रे करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे वो बनाना पील का आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना लिया, उससे आप इसको स्प्रे करना है। पर इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसे ही ज़िंदा रह जाते हैं, ठीक है। पर आपको पर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, दैट इज़ ए बिग नो फॉर ऑल प्लांट्स। वी स्पॉइल आवर प्लांट्स विथ टू मच ऑफ केयर। जस्ट सुबह गुड मॉर्निंग बोलो उनका सब, बस देखो, उसके बाद बस पाइप को तो हाथ ही नहीं लगाना है कि पाइप से हम पानी देना, पाइप बिग नो, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ रखिए, और ये जो मिस्टिंग पंप है उसको रखिए, और अपना हल्का से इसने देना है। जिस दिन आफ्टर 3-4 days बास्केट्स में भी जब देना है, तो वो जो उसको जब आपने देना है 3-4 days नहीं, 5-6 days के बाद इसका, अनलेस इट इज़ इन ब्राइट सनशाइन, बहुत ब्राइट में है तब इट इज़ डिफरेंट, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इनको 2 मिनट बाहर भी दिखा सकती हूँ, अब तो ब्राइट सनशाइन होगी है।
ये देखिए मेरी बास्केट्स, ये वाली देखिए, दिस वन सक्यूलेंट है, वो है टैंगलिंग हार्ट्स जो वैसे खूब सारे ग्रो करती रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा ग्रो करती है. दिस इज़ ए सक्यूलेंट अगेन, डजंट नीड मच ऑफ केयर. बस मैंने लगाया हुआ है कितने सालों से, 1.5-2 साल से लगाया हुआ है. इट्स डूइंग ए गुड जॉब. बस ऐसे आप पेड़ों पे लगा सकते हैं. अभी मैंने लगाए हुए थे, अब कल रेन हो गई तो आई हैड टू. ये जस्ट सी दिस वन, ये बहुत बड़ा हो जाता है. अब ये मैंने देखिए लगाया गुलदाउदी मेरा. नेक्स्ट टाइम यू नेवर नो, आई मे डिस्कस दिस ओनली. गुलदाउदी के जो आपको दिखाए थे सैपलिंग्स पहले, ये अब बड़े हो रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम वी विल cover this also in our. So viewers, thank you very much for watching my program, spending your time with me. Stay at home, stay healthy, and don't feel bored. Think of some creative ideas, think of some interesting things, and every morning when you get up, thank you, say thank you to God, and also say, God, today I want to live my day very nicely. So face the world bravely. God bless.